Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well, and this video is specially for YVU students third semester uh, who are going to attend third semester exam, and this is for the pedagogy paper. Okay, so many students ask about the pedagogy question selections or selective questions for the pedagogy paper, so that I'd make that video for them and to guide them or uh, for their beneficial points. Okay. Away that let's start today's session with some subjects, especially the pedagogy of mathematics, because many students having that subject. So that you have to prepare some questions, and these videos are already available in our channel, in your channel also, in your channel, that means our your, that is same. So let's start. So first question is all about the mathematics curriculum question is fixed for everyone. Curriculum question is fixed for everyone. If you not getting this question, if you are not getting this question, then please check our group, telegram group, for notes, and also check my channel, and mention or search by the term curriculum or curriculum construction. Okay, you get it. So there are two questions here, or one long questions mainly, and these questions having same answer type. Okay, so first of all here, mention that meaning and objectives of curriculum. Objective, that is the objectives are smaller than or narrower than the aims, so that objectives are the step O1, O2, matlab objective 1, objective 2, objective 3. When they get together or when they join together, they prepare our aims or fix our aims, right? So objectives, first of all, you have to mention the curriculum point. What is curriculum? Curriculum is a race course. It contains various type of concepts, just like it contains curricular activities, co-curricular activities, scholastic, co-scholastic, plus examination, evaluation, teachers' competences, and teacher every type of thinking, teachers' activities, method selection, examination or gradation, assessment, etc. All these activities under the school, institution, or administrative section altogether is called curriculum. Meaning, you have to mention the meaning. Then you have to write the definition also, one or two definition. Curriculum uh, has been derived from the word career, CURRERE. So you have to mention that also. Okay, that point is enough. After that, you have to write principles for designing and organizing curriculum. Which principles are needed for the preparation of the curriculum? So I have to explain that points also in the video. So please check it properly. And after that, I have mentioned already that 12 steps are there. 12 steps are there, and that 12 steps are important also. So to make curriculum, proper curriculum, you have to follow the 12 steps, right? After that, approaches for the organizing curriculum. Approaches, there are 8 approaches. You have to mention that 8 already, or according to your book, you have to mention shortly also. So lastly, meaning of syllabus and difference between the syllabus and curriculum. So here the first unit contains first long question by getting together these all points: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, right? So that is fixed. Curriculum is one long question, samajh aa gaya. After that, 1.5 contains 2 points: NCF SE. NCF SE 2005, already National Curriculum Framework 2005, that is National Curriculum Framework 2005. Okay, already आप लोगों ने पढ़ा हुआ है previously in the first semester. So NCF 2005 is fixed, so prepare that also. It is all about 3 pages notes, so prepare it, and already video is uploaded. Okay. APSCF, that is Andhra Pradesh State Curriculum Framework 2011. ये सिमिलर टाइप है. एनसीएफ एससी एंड एपीएससीएफ, ये दोनों सिमिलर टाइप है. सो क्या वेरिएशन करोगे? सेम लिखना है, सिर्फ नेशनल की जगह पे आंध्र प्रदेश वाला लिख देना, वर्ड चेंज करना है. ये लास्ट टर्म के लिए मैं बोल रही हूँ. सो हो जाएगा, इतना में हो जाएगा. That is important. So another long question is that. Okay, 1.6 to a short question, that is askew arithmetic point of view, algebra point of view, and geometry. And that's enough. That's enough. If you have to prepare that question also. So in assessment learning, I have mentioned that also. That is representation of data, basic concepts of probability, measures of central tendencies. That is important. That one is the long question. So that is important. Otherwise, that's enough. After that, mensuration.
थोड़ा मोड़ा पढ़ना, अदरवाइज छोड़ सकते हो। दीज आर द टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तो आपका ही बेस है, हो जाएगा। यूनिट 2 लैंग्वेज एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। सो एस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स में 3 एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, वेरिएबल्स हैं, Vikhoff and their relationship and coexistence of the precision and beauty in mathematics, सिमेट्री स्ट्रक्चर के अंदर क्या है रिलेशन, वो जानना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू है ना, ये आप हिस्ट्री के पार्ट से लिख सकते हो। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ मैथमेटिक्स इवॉल्व्ड और हाउ मैथमेटिक्स हैज बीन derived फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स और रिलेटेड विद द साइंस और अदर सब्जेक्ट्स, उसको समझाना है। सो ये फर्स्ट सेमिस्टर में हम लोग पढ़े थे, उसको आप कर सकते हो, ठीक है। Recreational mathematics is important because games, puzzle, riddles, these are the small topics when grouped together to form a long question. Another last question is the language of mathematics, that is a short question. Okay. Then assessment and evaluation. That question is very much important. Okay, very much important. Testing of mathematics और मैथमेटिकल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये पार्ट लिखना है, टेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट, इतना करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। Another long question is the 3.2 assessment, measurement, evaluation in mathematics. तो ये assessment पेपर में पढ़े हो, learning assessment पेपर में हमने पढ़ा है, तो उसको पूरा लिख दोगे, यहाँ पे हो जाएगा। और another long question is achievement test. मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर में भी अचीवमेंट टेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड ब्लूप्रिंट समझाया था। इस बार भी असेसमेंट के पेपर में भी 3 टाइम्स ब्लूप्रिंट एंड अचीवमेंट टेस्ट मेंशन है, तो वहाँ पे जो करोगे यहाँ पे भी कर लेना, सेम है। देन देखो प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट मटेरियल्स, व्हेन यू प्रिपेयर ए टेस्ट मटेरियल व्हाट प्रिकॉशन शुड बी यूज्ड और टेकन बाय यू टू प्रिपेयर। सो नेक्स्ट पार्ट इज दैट another topic, that is a speed test in mathematics or preparation of test items. These are not important, these are not important. If it will come, then write about 3.1 answer, that's enough. Okay, last question is very much important because CCE, recently I uploaded that video in our group, so please check it properly. CCE, continuous comprehensive evaluation, that is important question. Okay, long question. Then next unit 4 mathematics for all, that is speed and accuracy in mathematics, understanding learners gifted, slow, backwardness and dyscalculia. That is important one, that one is important, 4.2. Then next is mathematical clubs, fairs and its activities, olympiad, recreational activities. साइंस क्लब जो है, मैथमेटिक्स क्लब भी वही होता है, वैसे ही उसका इंपॉर्टेंस है। फेयर्स का भी वही है, साइंस फेयर और मैथमेटिक्स फेयर, ओलंपियड, ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज साइंस इज द मेन ब्रांच एंड द मैथमेटिक्स इज द सब ब्रांच of the science. Then mathematical laboratory is also important. इतना हो गया। कोऑपरेटिव लर्निंग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पीयर लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, तो ये 3 टॉपिक में से कोऑपरेटिव पीयर लर्निंग को कर लो, बेटर रहेगा। नेक्स्ट वन प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स टीचर। सो टीचर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है, इन सर्विस प्रोग्राम किया जाता है, इन सर्विस प्रोग्राम फॉर द मैथमेटिक्स टीचर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लो, बेटर रहेगा। देन मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन लिखा गया, इतना आता नहीं है, शॉर्ट के लिए चलेगा, अदरवाइज छोड़ सकते हो। जर्नल एंड अदर रिसोर्सेस मटेरियल, तो ये रिसोर्सेस मटेरियल है जो मैथमेटिक्स पेपर में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उतना करना। SQS शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लो। एंड ई लर्निंग याद करो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ICT में। एंड पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेस एंड द सेमिनार वर्कशॉप, तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, 2-2 पेज करके नहीं लिखना है, एक एक पेज करके भी लिखोगे तो ये बन जाएगा। सो ये था आपका पेडागोजी मैथमेटिक्स। देन आ जाओ सोशल स्टडीज़ पे। सो सारे बच्चों को बोल देती हूँ कि मैं एट ए टाइम सबको दे रही हूँ, और आपको पॉइंट्स देखना है, पॉइंट देख देख के करना है, ठीक है। कौन सा कितना PDF ऐसा है वो ऐसा है, वो नहीं कर सकते क्योंकि सिमिलर टॉपिक्स बहुत है, तो सिमिलर टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। एंड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, टाइम थोड़ा हो नहीं रहा है, तबीयत थोड़ा ख़राब था, सो उस अकॉर्डिंग मतलब आप लोगों ने बोला था, बट मैं हॉस्पिटलाइज थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया कुछ भी। सो आज कर रही हूँ, तो आप लोग पढ़ लो, एंड जो भी इम्पोर्टेंट और कुछ मिल नहीं रहा है या फिर बुक से हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप लोग मुझे हेल्प चाहिए तो बोलना, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगी। ओके सर, नेक्स्ट सोशल स्टडीज के लिए देख लो, सोशल साइंस के लिए तो फंडामेंटल कंसेप्ट, दिस आर द कंसेप्ट, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये तो आप लोगों के लिए एनएफ है, पता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1.1 का कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ के जो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इधर आ जाना, जैसे कि देखो इंडियन जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी कर सकते हो या फिर इकोनॉमिक्स का कर लो, बेटर रहेगा। बिकॉज इकोनॉमिक्स का करोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजीज, ये जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है ना, अभी रिसेंटली मैं अभी पढ़ाऊंगी मैथड्स में, टीचिंग स्ट्रैटेजीज ऑल्सो नोन एज अ टीचिंग मैथड्स। तो मैथड जो फर्स्ट सेमिस्टर में हम लोग पढ़े थे ना, फर्स्ट सेमिस्टर में जो टीचिंग मैथड्स पढ़े थे वही है,
टीचिंग मेथड्स पढ़े थे वही है, वो आंसर कर लोगे तो हो जाएगा। सो 1.3 एंड 1.4 को एट अ टाइम करना एंड 1.5 को टीचिंग मेथड्स को कर लेना, बेटर रहेगा, आ जाएगा, मिल जाएगा। यूनिट 2 में चल जाओ, तो यूनिट 2 में वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के ऊपर है, आप लोग कर सकते हो। एंड 2.2 में है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कर लो थोड़ा सा, सिटीजनशिप में आप लोग लिख सकते हो थोड़ा बहुत। 2.1 थोड़ा कर लेना एंड 2.4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट है, ये जानते भी हो आप लोग, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड ऑर्गन गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग स्ट्रेटजीज देखो फिर से है, तो वही टीचिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज कर लेना, हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में और नहीं पढ़ना पड़ेगा। देन देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये तीनों को मिला के आपको करिकुलम का बनाना है, जो करिकुलम का मैथ्स का बताई वही है, उतना ही करना है। अप्रोचेस में देखो मैंने बोला था 8 है, बट आपके बुक में ओनली 5 पॉइंट्स मेंशन है, कंसेंट्रिक, 5 नहीं 6 मेंशन है शायद, सॉरी 5 ही मेंशन है, कंसेंट्रिक, स्पाइरल, क्रोनोलॉजिकल, ट्रॉपिकल, कोरिलेशन। तो ये आप दूसरे बुक्स में 8 है, बट यहाँ पे 5 है ओनली। सो क्वालिटीज ऑफ ए गुड सोशल टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड इसका जो नीचे है वो भी सेम ही क्वेश्चन है, तो इसमें सेम ही आंसर लिख देना, हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन सोशल साइंस, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन सोशल साइंस। सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में क्या क्या चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है ये करो, टीएलएम क्यों चाहिए, क्यों मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो करना है। ग्लोब्स मैप्स, ये जो आप है मैप्स लैंग्वेज मैप रीडिंग, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कर लो। चार्ट ग्राफ्स के अंदर टाइप्स ऑफ चार्ट, क्रोनोलॉजी, टेबुलर, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेना, एंड इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट इसके सेम ही होते हैं, इतने पॉइंट्स के, कर लो। मॉडल्स, वर्किंग स्टील, डायरोमा, डायरोमा दैट इज, ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, क्योंकि दो दो पेज का अगर हम लोग मेंशन करें ईच पॉइंट से तो हो जाएगा। स्क्रैप बुक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट, स्क्रैप बुक, सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट 5 में इवैल्यूएशन इन लर्निंग सोशल साइंस में 5.1 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पे एक चीज देख लेना, कितने को मिला के लिखना है। 5.1 का 5.1, 5.2, 5.3 एक साथ मिला लो, एक ही क्वेश्चन है, बन जाएगा। सीसीई मॉडल इज इंपॉर्टेंट एंड उसके साथ टेस्ट स्कोर और द ब्लूप्रिंट, तो ये आपका हो गया। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन भी मेंशन है, क्वालिटीज एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये याद करो, असेसमेंट लर्निंग में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहां से पढ़ लेना, बेटर रहेगा, एक ही तरह से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल साइंस में। तो यहाँ पे फिजिकल साइंस का करिकुलम हो गया, पहला क्वेश्चन यहाँ आ गया, देखो मेंशन है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एंड यहाँ तक का 1.1 1.2 को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। देन सेकंड वन में एनसीएफ इज वन लॉन्ग क्वेश्चन, आरटी अनदर लॉन्ग क्वेश्चन, एंड एनसीटीई एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एपीएससीएफ सिमिलर टाइप है एनसीएफ के साथ, तो आप सिर्फ टर्म को चेंज करेंगे, एन की जगह पे आंध्र प्रदेश लिख देना, हो जाएगा। तो वो एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वन। राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ चुके थे, जो कि आरटी 2009 है। अनदर पॉइंट इज दैट टेक्स्ट बुक इज इंपॉर्टेंट, और टेक्स्ट बुक को लेके ये दोनों क्वेश्चन को एट ए टाइम कर लेना, एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। यूनिट 2 में देखो 2.1 एंड 2.2, ये दोनों को मिला के शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एक बन सकता है। फिर आईसीटी का एंड मल्टीमीडिया का रोल, देखो ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेमेस्टर, राइट, इन आईसीटी बुक। सो इन आईसीटी पेपर वी डिस्कस दैट। सो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी, बिकॉज मल्टीमीडिया आईसीटी दोनों है। देन 2.5 में देखो एसएलएम है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, सेल्फ लर्निंग मटेरियल मतलब खुद पढ़ने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो एंड कैसे प्रिपेयर करते हो, नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हो, वो सब आएंगे। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट 3 में देखिए साइंस क्लब्स हैं, साइंस क्लब, साइंस एग्जीबिशन, साइंस म्यूजियम, साइंस फेयर, ओलंपियाड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सर्च करोगे टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रिपरेशन प्रोपगेशन ऑफ साइंस, साइंस को डेवलप करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट में आप बता दूं कि सोशल साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, सबका करिकुलम फॉर्मेशन सेम होता है, उसका प्रोग्रेस भी सेम टाइप का होता है, तो वही लिख देना, नेशनल टीचर साइंस कांग्रेस और इनिशिएटिव, रिसर्च, इनोवेशन, ये सारे पॉइंट्स को मिला के एक क्वेश्चन का आंसर बना देना, बेटर रहेगा। तो इस यूनिट से इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा। यूनिट 4 से आ जाओ, ये सारे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना टीचर का रोल के बारे में लिखना है पूरा, यहाँ पे भी देखो टीचर कम्युनिटी के, इसमें भी टीचर्स के रोल के बारे में लिखना है, जो कि आप पढ़े थे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पेपर में। पार्टिसिपेशन इन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ये सारे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं, सारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं। अभी लास्ट वन, टीचर एज ए रिसर्चर, एक्शन रिसर्च देखना, एक पीडीएफ है पूरा, एक्शन रिसर्च का पीडीएफ भी है, अगर पीडीएफ नहीं आया बिकॉज इतना टाइम तो नहीं है, तो आप वीडियो देख लेना, एक्शन रिसर्च पे पूरा 1 घंटा का वीडियो होगा, 1 1.5 घंटा का, पूरा कर लोगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो फिक्स है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में ये था, मैं इसलिए मेंशन कर चुकी हूँ। यूनिट 5 में देख लो फिजिकल साइंस वाले,
लास्ट इवैल्यूएशन, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। देन इवैल्यूएशन रिस्पॉन्स स्कोरिंग टेबुलेशन, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेंशन कर दिया लॉन्ग क्वेश्चन, तो वहां पे और नहीं देखोगे तो भी चलेगा, ये देख लेना। इवैल्यूएशन, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट प्लस ब्लूप्रिंट एंड सीसी, ये 4 क्वेश्चन करके जाना, ये फिक्स्ड है सबके लिए, ठीक है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सो आपको मैं बता दूं, एंड आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ से बहुत कुछ। अच्छा, कंप्यूटर में और आईसीटी पेपर में ये दो पूरा हो गया था, नीड ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर क्लासरूम टीचिंग, ये दोनों मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लासरूम इंटरेक्शन पैटर्न एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन जो कंसेप्ट था एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर पर पढ़े थे, वही है क्लासरूम इंटरेक्शन पैटर्न। इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल मतलब जो स्किल्स आप डेवलप करते हो वही सारे इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, एंड ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अभी देखो टीचिंग ग्रामर, ग्रामर टीचिंग में इंपॉर्टेंट है 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4, ये चारों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। बाकी रिमीडियल टीचिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन है। रिमीडियल टीचिंग के ऊपर भी वीडियो होगा, देख लेना। टीचिंग वोकैबुलरी स्टडी रेफरेंस स्किल्स, अभी देखो ये जो स्किल्स आते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मतलब यहाँ पे टीचिंग स्किल्स के बारे में लिखना है। एक टीचिंग मेथड्स आएगा, टीचिंग स्किल्स और टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टर्म्स को याद रखो। टीचिंग स्ट्रैटेजीज सेम है, टीचिंग स्किल्स सेम है, एंड टीचिंग मेथड्स भी सेम है, तो उसको पढ़ लोगे हो जाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बोल लो, लॉन्ग भी बोल लो, दोनों ही आएगा। वोकाबुलरी गेम्स इज इंपॉर्टेंट, बाकी यहाँ पे 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग होता है पूरे कंसेप्ट को जान के छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना। नोट टेकिंग, नोट मेकिंग आप जब करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के खुद से प्रिपेयर करते हो। नोट टेकिंग कोई आपको अगर डिक्टेट करता हो तो कुछ उसको नोट टेकिंग करते हैं, हम लोग नोट बनाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट इज आइडियाज का तूफान बोल लो, बहुत सारे आइडियाज एट अ टाइम आते हैं। कोई एक टॉपिक दिया जाता है, उसमें 6-7 बच्चे एक साथ एक रूम में बैठते हैं एंड इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं और आइडियाज को निकालते हैं, उसको नोट डाउन करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि हम न्यू आइडियाज गेन कर सकें। दैन टेक्निक्स ऑफ टीचिंग रेफरेंस स्किल्स, कौन से स्किल्स है देख लो, डिक्शनरी, थिजरस, एनसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी। डिक्शनरी कर लो, एनसाइक्लोपीडिया कर लो, एंड थिजरस इंपॉर्टेंट कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ के जाना। अब देखो सबसे नीचे आ जाओ, इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स, तो भावेल्स क्या है, डिप्टोंग्स क्या है, कॉन्स्टेंट, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड लैंग्वेज लेबोरेटरी, तो ये सारे टॉपिक्स ना शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। बोलो क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस कर लो, इंटोनेशन कर लो, एंड फर्स्ट वन कर लो, इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिट 5 से देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट तो है क्या, सीसी इज वन इज लॉन्ग क्वेश्चन। देन टेस्ट, गुड टेस्ट मतलब इवैल्यूएशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, गुड टेस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिल गया। देन टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस बोला गया, मतलब हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन है, तो ये ना ये वाला हम लोग अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में भी पढ़े थे, प्लस असेसमेंट में भी था, एंड इसमें भी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एनहांसिंग इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, लास्ट वन, प्रिपेयरिंग टेस्ट फॉर डिफरेंट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें 4 स्किल्स हैं, आपको याद है 4 स्किल्स ऑलरेडी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में भी पढ़े थे प्रीवियसली फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वही 4 स्किल है, अभी भी अपलोड हुआ है, आज ही अपलोड हुआ है आपका लास्ट स्किल्स, दैट इज अ राइटिंग स्किल, एंड बाकी जो 4 स्किल्स है दैट इज अ लिस्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW, ये 4 करके चला जाना, ठीक है। और लास्ट वन देखो, स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट, दैट इज द अचीवमेंट टेस्ट एंड द ब्लूप्रिंट, अनदर लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये करके जाना है, ठीक है। सारे अपलोडेड है ऑलरेडी वीडियो, देख लो, चलेगा। एंड नोट्स भी टेलीग्राम में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऑलरेडी मैं असेसमेंट का नोट्स दे चुकी हूँ आपको, सो वहाँ पे भी चेक करो, बेटर रहेगा। सो लास्ट पेपर इज पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में अगेन बोल दूँ, यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स हैं, देखो 3 पॉइंट्स क्या बहुत सारे हैं, सो ये पूरा 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 बोल दो, इतनी चीज़ों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट, बाकी तो सब शॉर्ट ही है। 1.6 तक को मिला के आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। करिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्टेजेस में, मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट्स को आप देख के जाओगे कि प्राइमरी लेवल में करिकुलम थोड़ा सा इजी होना चाहिए, सेकेंडरी में थोड़ा सा हाई, हाई सेकेंडरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस को लिखना है करिकुलम का, ये शॉर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बेटर रहेगा। देन नेक्स्ट है 1.8 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दैट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ओके बार बार बोल रही हूँ, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अगर कर लेते हैं, सुनो आइडिया रखो माइंड पे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ऑलरेडी पढ़ चुके हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसी को लिख देना 2001 आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम फ्रेमवर्क एक जैसा ही होता है, सिर्फ टर्म चेंज करना है, नेशनल के जगह पे आंध्र प्रदेश वाला लिख देना, वर्ड हो जाएगा। देन क्वालिटीज ऑफ ए गुड बायोलॉजिकल टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका भी हो जाएगा, आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, एक ही कर लोगे तो हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको तीन नहीं 4 लॉन्ग क्वेश्चन मिल गए, बाकी सारे शॉर्ट ही है, उसी से ही शॉर्ट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट हो गया
यूनिट 2 से देख लो, प्रैक्टिकल वर्क इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल वर्क जो आईसीटी में पढ़े थे या फिर ऐसे प्रैक्टिकल वर्क पढ़ाया गया वही चीज़ है बायोलॉजिकल साइंस के लिए भी सेम है। प्लानिंग ऑफ साइंस लेबोरेटरी लेक्चर कम लेबोरेटरी, ऑल पर्पस लेबोरेटरी, मोबाइल साइंस लेबोरेटरी। मोबाइल साइंस लेबोरेटरी क्या होता है बोलो? एक वैन बनाया जाएगा या फिर एक ट्रेन का बॉगी बनाया जाएगा या फिर एक ऐसा यूनिट बनाया जाएगा जो कि मूव हो सकता है, ऐसा लेबोरेटरी रहेगा। लेक्चर कम लेबोरेटरी में क्या होगा? जहाँ पे लेक्चर्स भी दिया जाता है, एक बोर्ड रहेगा, वहाँ पे टीचर्स पढ़ाएंगे भी प्लस लेबोरेटरी का वर्क डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। ऑल पर्पस लेबोरेटरी जो सबको यूज कर सकते हैं एंड वहाँ पे टीचिंग भी हो सकता है एंड प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं। साइंस लेबोरेटरी जहाँ पे हम साइंस सब्जेक्ट्स का स्पेशली लेबोरेटरी वर्क करते हैं, मतलब हम प्रैक्टिकल्स ही करते हैं। तो इतना हो जाएगा। इतने जो इक्विपमेंट्स के हैं, थोड़ा थोड़ा इक्विपमेंट्स यहाँ पे लिख देना, हो जाएगा। फास्ट एड भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लेबोरेटरी थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद देख लो, एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बेसिक नीड्स को लेके होता है। एडगर्स डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी अपलोडेड है वीडियो। तो ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हो, वही है। एंड मैं बोल दूं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट है। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। टीचिंग एड्स देख लो, टीचिंग मेथड हो गया, टीचिंग मेथड बोल लो, टीचिंग स्ट्रेटेजी बोल लो, टीचिंग स्किल बोल लो या टीचिंग एड्स बोल लो, सारे एक ही क्वेश्चंस है। ठीक है, टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब टीएलएम होता है। तो टीएलएम जब भी यूज करते हो तो मेथड्स के अकॉर्डिंग ही टीएलएम सिलेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे लिखना क्यों करना है सिलेक्ट, या इम्प्रोवाइज क्या चाहिए उसको लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आने के चांसेस ज़्यादा हैं दोनों में से। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल एड्स जो है, दैट इज आप बोलते हो जो मल्टी सेंसरी अप्रोच या ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल मीडिया जो पढ़े थे, इंस्ट्रक्शनल मीडिया बोल के एक भी मतलब पीडीएफ होगा, वहाँ सर्च कर लेना, मिल जाएगा टेलीग्राम में। बाकी दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आप साइंस किट, साइंस लाइब्रेरी, साइंस क्लब, साइंस एग्जीबिशन, साइंस फेयर, साइंस म्यूजियम, ये जो पॉइंट्स है ना, किट क्या होता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन सबका डिफरेंट कर देना, बाकी के सारे कैरेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंस सेम कर देना, बेटर रहेगा। अभी यहाँ पे सब क्वेश्चंस हैं, ये यूनिट पढ़ के जा रहे हो मतलब ना लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है। तो दैट इज पोर्टफोलियो असेसमेंट में पढ़ चुके हो, सीसी एक इंपॉर्टेंट है। देखो, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट कोड उतना नहीं करोगे तो चलेगा। ये भी नहीं करेंगे तो चलेगा। तो ये देखो, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट, ये टाइप ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट ये कर लेना, असेसमेंट में पढ़े हो। इवेलुएशन एक कर लेना, ये असेसमेंट में पढ़े हो। एंड ये पॉइंट भी पढ़ा चुके हो। तो दीज आर द क्वेश्चंस, इसको करके जाना है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को हेल्पफुल हो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। एंड जब एग्जाम दे के आओ, क्या डाउट हुआ क्या नहीं हुआ मुझे इन्फॉर्म प्लीज़ करेंगे सब कुछ। एंड वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग देखो, सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। क्लासेस इस बार नहीं मिले तो मैं आप लोगों को हेल्प नहीं कर सकी इतना ज़्यादा, बट ऑफलाइन क्लासेस में मेरा जितना पॉसिबिलिटीज़ था मैंने सबको समझाया भी था। आई भी हूँ, मतलब संबलपुर से आके क्लास की हूँ इधर। सो प्लीज़ try to understand and prepare yourself for the examination, and if you want any type of help from me then tell me, I'll help you. Okay, सो इसके बाद प्रिपरेशन अच्छे से करो, कॉपी मत छोड़ना, जो भी पेपर आए क्वेश्चन लिखने को ट्राई करना, हाफ लिख क्यों ना हो, ब्लैक में लिखना एंड ब्लू में पूरा आंसर लिखोगे। जिस जिस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट रहेगा उसको अंडरलाइन करोगे एंड हेडिंग्स को अच्छे से देना, बेटर रहेगा। एंड सीक्वेंस में लिखने को ट्राई करना। सीक्वेंस मतलब नंबर 1 के बाद नंबर 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। पेजेस को काउंट करके डिवाइड कर देना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम के अकॉर्डिंग आप लिखोगे। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे पहले टाइम पीरियड को, आफ्टर दैट लिखोगे। सो इतना ही है। आई होप समझ आया हो। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे पूछ रहे हो, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया। एंड आई होप सबको हेल्पफुल हो जाए। चलो, बाय बाय।